I hope I am audible and visible too. So in the today's newspaper analysis, basically in this editorial we will be discussing the editorial over the health sector. Now why this editorial has emerged in the today's newspaper? Basically the Niti Aayog has just published a report over the investment opportunities in the India's healthcare. India's healthcare, it has so we will be discussing this thing. So this editorial is saying about what is in this report, international practices, issues in this report, and further the way forward. But we will be discussing much more than what is written in this article. I will be giving you the holistic way about that, what is the National Health Policy 2017, where it fails, or what are the things it must incorporate now, and further the way forward for the National Health Policy. So now discuss first thing first. If you have any issues, questions, please do let me know in the comment section. I will be addressing all the queries and the questions here only. So now let's discuss about the health sector in India. This is this thing I have taken from the FICCI website. So what is the advantage? First is a strong demand. What is the strong demand? 372 billion US dollar will be the India's health sector expected market price. 372 billion when by 2022. What are the attractive opportunities? So healthcare, government is spending up to 3%, and central government wants to spend 2.5% of the GDP according to the National Health Policy. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा तो there will be more opportunities which will be coming in the forthcoming time. Now the rising manpower. So we have a large professional pools or well-trained professionals, particularly in the health sector. We are giving the medical tourism. Many people from the South Asia, Middle East, and some European countries, they are coming to the Chennai, Hyderabad, in Delhi for the transplantation, heart transplantation, liver transplantation, and some kind of the cardiac disease and some other disease as well. So this is the rising manpower things, policy and the government support. So recently government has published a National Health Policy 2017, so which talks about comprehensively Atmanirbhar Bharat. Yes, it talks about how indigenously we can improvise the new facilities, technologies, and further the medicine. It also talks about the traditional medicine, the traditional way of the thinking as well. So this is all about the health sector की क्या है भाई, demand क्या है, opportunities क्या है, rising manpower and the other things. Now let's come to this editorial. When I'm talking about this editorial, so basically this is the Ayushman Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So this particular scheme is basically all about the insurance type of the scheme. What is the insurance type of the scheme? Here government is providing the insurance up to 5 lakh per family, and now earlier when it was introduced that 5% per family, but now the number of the people in the family does not has to do anything. It means there is no restrictions, number of the people can be in the family. Okay? So almost on and around it gives insurance to the 50 crore people. When it gives insurance to the 50 crore people, it means almost half of the janta. I can say 40% of the janta per se. So now this 50% or so-called 450 crore people are being insured under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or Ayushman Bharat scheme. But what about the other? If I talk about what is the current population of India, it was in 2011 it was 1.21, but let's say now 1.3 approximately. So when I'm saying it 1.3,
और 130 crore population. Now out of this 130 crore, 50 crore are already insured, and now how much people are left now? How many people are left? So now almost 70 crore people are left. Now in these 70 crore people, few people are affluent. For example, Ambani type. They do not need any kind of insurance. They do not need, because they have enough money. They have plenty money. They can have their treatment at home. They can have their treatment at abroad. So they don't have any issues, and they don't have to think about their health. So fine. So but there are the people who are not the part of it, and who are also not the part of it. Means they are neither the poor nor the affluent. So those people are known as missing middle, or our middle class. So our middle class is taking the burden. So this is the class which is overburdened. It is giving the tax, yes. It is not drawing the benefit. It is the class which is giving the benefit to the poor, because ultimately their tax collection gives the money to the government, so that they can they can spend on the poor. बट उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मिसिंग मिडल. तो नाउ नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ऑन द हेल्थ सेक्टर, इट टॉक्स अबाउट दिस मिसिंग मिडल. इसका मतलब है कि चलो गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट ने समझा कि चलो बहुत अच्छी बात है भाई, गवर्नमेंट समझ रही है दैट मिसिंग मिडल वी हैव टू थिंक अबाउट. नाउ सॉरी, नीति आयोग की रिपोर्ट है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इंडियाज मिसिंग मिडल. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि ये रिपोर्ट क्या बात करते हैं, व्हाट द थिंग्स दिस रिपोर्ट प्रपोज. बेसिकली दिस रिपोर्ट प्रपोज ए वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस, वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस. जो आयुष्मान स्कीम है, आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इन दिस कॉमन मैन डज नॉट हैज टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रीमियम. कॉमन मैन डज नॉट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रीमियम. तो इसमें गवर्नमेंट ही प्रीमियम देगी, कॉमन मैन नहीं देगा. फाइन, बट हियर इट इज वॉल्यूंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी. मतलब भैया आप लोगों को, मीन्स हम लोगों को प्रीमियम देना होगा. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम, जस्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम, here premium will be given by the middle class. Again there will be more privatization or commercialization of health insurances, मतलब more private sector participation. Again in that also missing middle, government subsidies will be given only to the poor. In that missing middle also there will be the people who are towards that Ayushman Bharat, जिनके पास, जो पुअर हैं बट स्टिल दे आर इन द मिडिल क्लास, उनके लिए गवर्नमेंट विल गिव द सब्सिडी. What are the other things this report proposes? For hospitalization insurance, the report proposes a model similar to the Arogya Sanjeevani scheme. Basically अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत में क्या है, 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर एनम आपको बजट मिलेगा. इन दिस अप टू 10 लाख. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अप टू 10 लाख आपको मिलेगा, अप टू 10 लाख और विद लेस प्रीमियम. आपको यहां पर लेस प्रीमियम देना है. फॉर एग्जाम्पल you talk about the things, और लेट्स से अभी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस देखें, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तो यू विल बी फाइंडिंग इट लिटिल बिट कॉस्टली. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इट्स कॉस्टली, बट गवर्नमेंट नाउ हियर प्रोपोजिंग, और नीति आयोग इज प्रोपोजिंग कि आपको लेस प्रीमियम देना है. नाउ लेस प्रीमियम देना है
it is not like government is subsidizing that premium, but that premium government proposes to decrease. How? Basically to decrease the administrative cost of insurance companies. अगर इंश्योरेंस को जो कॉस्ट है इंश्योरेंस कंपनीज की वो कम डाउन आ जाती है, इफ दिस कम्स डाउन, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली प्रीमियम विल ऑल्सो कम डाउन. सो ये प्रपोज करते हैं. दूसरा क्या है? दिस रिपोर्ट ऑल्सो एक्नोलेजेस दैट ओपीडी एक्सपेंसेस आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसका कॉमन पर्सन, कॉमन मैन बर्डन झेलता है. सो वो इसमें भी ये बात करते हैं दैट वी विल हैव द ओपीडी इंश्योरेंस. We will have the OPD insurance. So the OPD insurance will be up to 5,000 per family per annum. Now इसमें इशू यही है. Look, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, हाँ, बिकॉज इट गिव्स यू ए कुशन. बिल्कुल सही बात. बट इट इज नॉट लाइक एवरी फैमिली विल गो एवरी ईयर टू द OPD. Or every family needs a intense tertiary care. No. So here is the issue. Issue is that issue is 5,000 rupees per family per annum. Now अगर उन्होंने OPD उस साल यूज नहीं की है, let's say the family is young, so the chances of using of the OPD is less. So they either people will not join this. जो नई फैमिली है जिनकी अभी शादी हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a 25-year-old guy and a girl, they got recently married, they will not join this scheme. Why? Because they are young, they do not need that intense tertiary care. Now उसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to give. Now उसके लिए अपने को क्या करना होगा? We have to give people either less premium or more attractive premium or more attractive facilities, like कि भाई आप एक काम करो, 5,000 रुपीज आपको 4 साल में देने हैं, ठीक है. अगर आपने इफ यू हैव यूज दिस OPD इन एनी ऑफ द ईयर, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम उसका रिन्यूअल कराना है. इस तरीके से यू कैन हैव द न्यू थिंग्स. नाउ अभी समझते हैं कि भाई ये हाउ प्रीमियम किस तरीके से इस पॉलिसीज में डिफरेंट है. हाउ द प्रीमियम्स आर डिफरेंट, या फिर लोअर प्रीमियम है. लोअर प्रीमियम क्यों है? बेसिकली द लोअर प्रीमियम आर बेसिकली अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ इंश्योरर थ्रू द एरे ऑफ मेजर्स. क्या है? लाइक प्रोवाइडिंग द इंक्लूडिंग प्राइवेट यूज ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉसिबली बाय स्विचिंग टू द लो पावर्ड मोड्स ऑफ फिजिशियन पेमेंट्स. ठीक है, आप पेमेंट का आप लो पावर्ड यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट इज गिविंग द कॉस्ट सेविंग टू द कंपनीज. नाउ अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल की, लेट्स लुक एट द इंटरनेशनल लेवल. तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं आपसे बात करूं, दैट कंट्रीब्यूटरी सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली हैव सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट आर दोज ट्रेट्स? एक तो बात यह कि भाई सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी होनी चाहिए स्कीम को. नीति आयोग इस पर शॉर्ट पड़ जाता है, नीति आयोग सब्सिडीज की बात ही नहीं करता. दूसरा क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट मोड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, बट हियर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट. So now let's discuss. I think we had some issues. Now let's come back to the topic once again. So some important guarantees in the health. So basically what we provide or what international arena provides in the contributory scheme, these are the three things. और नीति आयोग इन तीनों में से किसी की भी बात नहीं करता. ना तो सब्सिडीज की, भाई सब्सिडीज नहीं देगी गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट मोड ऑफ ऑपरेशन, ये भी नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट the private sector participation. We are also talking about some important guarantees for the health. हम उसकी भी बात नहीं करते. तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ये इन तीन चीजों को डायरेक्टली मना कर देती है. Now if I talk about स्विट्जरलैंड, कि भाई स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, तो स्विट्जरलैंड इज एक्चुअली स्विट्जरलैंड्स हेल्थ सेक्टर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्राइवेट इंश्योरर. बट वहां पर वी हैव
means Switzerland have check and balances. What are the check and balances? What are the check and balances? पहला क्या है? Benefits are etched in the legislation. Next क्या है? Basic insurance is mandatory and not for profit. Ignore कर देते हैं, ये ignore कर दिया है नीति आयोग ने. Cream skimming and risk discrimination are prohibited. Cream skimming मतलब कि भाई अच्छा you can give more premium, come join our health policy. You cannot give them more premium, so we will not take you. Now for example the people who are young, now they want to take the health policy, तो उनकी कंपनी ज्यादा अच्छा प्रीमियम देगी. क्यों? क्योंकि they are less prone to the ill or less prone to the any kind of health disease. But for example the children, for example the old people, they are more prone to the health issues, तो उनके लिए या तो प्रीमियम्स ज्यादा है. Now this thing is nowhere mentioned in the Niti Aayog report. Now this report also suggests enrollment. क्या? Prevailing per capita expenditure on the hospitalization care is used to reflect affordability of the hospital insurance. मतलब ये बेसिकली बात करते हैं भाई जो अफोर्ड कर सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस मिलेंगे. जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए हम गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, बट सब्सिडी विल नॉट बी फुल्ली सब्सिडाइज. इसका मतलब है दैट वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम. हम चाहते थे एक यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी हो, ठीक है, और वो हम यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस में, और अभी उसकी तरफ वी आर नॉट गोइंग. नाउ अब ये जो नीति आयोग ने प्रपोज किया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इवन आयुष्मान भारत स्कीम डज नॉट हैव फुल सब्सक्रिप्शन. मतलब हमारे यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस या पर्टिकुलरली इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है दैट इज वेरी 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 लो. इसका मतलब है कि जब फ्री में पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग द हेल्थ इंश्योरेंस, then how we can say that if we ask people to give the premium and they will join? No, they will not join. So when they will not join, again this report does not give any kind of mechanism to cope up with that. Now next क्या है? Let's talk about the issues in this report. Issue in this report में देखते हैं क्या है. एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर डेकेड अगो. उस ग्रुप ने पर्टिकुलरली बात की थी कि भाई अपने को टैक्स फिनांस हेल्थ सिस्टम चाहिए, ना कि टोटल प्राइवेट पार्टिसिपेशन. बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज गोइंग दिस वे, नॉट गोइंग दिस वे. सेकेंड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस रिपोर्ट, नो कंट्री हैज एवर अचीव्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज just by relying on the private sources. तो भैया नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी इशूज हैं. कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एट ऑल द बेस्ट वे फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्या है? जो ओपीडी इंश्योर्ड फैमिलीज हैं, अगेन उनके साथ क्या इशू है? उनके साथ ये इशू है कि भैया एनुअल सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट क्या है कि OPD insurer family would need to pay nearly the entire insured sum. इसका मतलब क्या है? भैया गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है. गवर्नमेंट इज हैविंग नो रोल. गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस और नीदर गिविंग एनी काइंड ऑफ सब्सिडी. नाउ नीति आयोग की जो रिपोर्ट है डिफाइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉजिक दैट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनवेरिएबली एंटेल्स ए स्ट्रॉन्ग एंड ओवरआर्किंग रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट हेल्थ केयर. मतलब गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में एक मेजर रोल होगा, तभी हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ले पाएंगे. बट करंट रिपोर्ट डेविएट फ्रॉम दिस लॉजिक एज वेल. सो व्हाट दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट? दिस रिपोर्ट इज मोर अबाउट एक्सपेंडिंग द फुटप्रिंट्स एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्राइवेट health insurance sector rather than more robust interaction, more robust spending of government resources into the health. तो इसका मतलब है कि government now shedding its responsibility and giving the people कि भाई अपना देखो, हम कुछ नहीं करेंगे.
That is what government or Niti Aayog report is saying. Now let's talk about little bit National Health Policy 2017. तो ये बेसिकली क्या बात करती है? ये बात करती है भाई एश्योरेंस बेस्ड अप्रोच. एश्योरेंस बेस्ड अप्रोच क्या है कि ये बात करती है भाई स्पेशल फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर. उसके बाद क्या बात करती है? हेल्थ कार्ड लिंक्ड हेल्थ फैसिलिटीज. मतलब कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग्स टू कर्नाटका, यू कम टू दिल्ली, तो आपका वो जो हेल्थ कार्ड कर्नाटका का है वो यहाँ पर भी वैलिड हो. सेम वे पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच. पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच मतलब पेशेंट शुड बी एम्पावर्ड. अगर किसी हॉस्पिटल ने उन्हें मना कर दिया है दैट वी विल नॉट प्रोवाइड यू द केयर, तो एक बेसिकली एक मैकेनिज्म हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो, इफ एनी काइंड ऑफ फाइन सिस्टम इज देयर सो दैट दोज हॉस्पिटल कैन बी पुट इनटू दैट फाइन थिंग्स. उसके बाद क्या है कि भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी. माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आल्सो टॉक्स अबाउट हाउ टू एलिमिनेट द malnutrition, quality of the care, periodic measurement and certification to ensure the level of quality to be maintained. What is the next thing? नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या फोकस करती है? ऑन स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से क्या फायदा होगा? एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट केयर बाय मेंटेनिंग द एडिक्वेट स्टैंडर्ड. मतलब अपने को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा. अगर if hospitals and the people's hospitals and these health workers or health professionals are deviating from that, so they can be scrutinized and all. उसके बाद इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कि भाई हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिवाइसेस का. इसी के लिए हमने आपको पता होगा इन केरला हमने एक मेडिकल पार्क भी बनाया है, मेडिकल पार्क. एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ, हम बात करते हैं डिजी हॉस्पिटल की, हम बात करते हैं डिजी डॉक्टर की, ठीक है, ताकि पीपल शुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टू फॉर द हेल्थ. सिंपल वो फॉर एग्जांपल मुझे अभी इफ आई एम इल आई विल जस्ट सी माई डॉक्टर इन द ऐप, आई विल आस्क हिम कि भाई मुझे क्या करना चाहिए. ही विल डायग्नोज, ही विल गिव मी द मेडिसिन or he will tell me the medicine and I will go to the shop and purchase that medicine. Policy advocates about improving the efficiency, transparency and also the citizen experience. It also talks about, NHP also talks about private sector engagement, but इस particular चीज को नीति आयोग ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया कि भाई सब चीज प्राइवेट they are talking about huge privatization which we need to think. Let's talk about the key goals. की गोल्स देख लेते हैं थोड़ा सा. नेशनल हेल्थ पॉलिसी की गोल्स क्या हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो हमारे मेजर फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो वो हमें कहाँ करने हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में. वो हमें कहाँ करने हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में. हमें अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज करनी है 270 बाई 2025. हमें जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है उसे पहुंचाना है 2.1. हमें रिड्यूस करनी है अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23. कब तक? बाय 2025. हमें रिड्यूस करनी है IMR टू 28 बाय 2019. ठीक है, अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है. हमें न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज करना है. हमें अचीव करना है 90s to 90 फॉर HIV एड्स. मतलब 90% को दवाई मिले, 90% डायग्नाइज हो और 90% हमारा कवरेज रेशो हो. उसके बाद हमें एलिमिनेट करना है किसे? जैसे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, हमें एलिमिनेट करना है लियोप्रेसी को. अब समझ लेते थोड़ा सा वे फॉरवर्ड क्या है भाई. अपने को क्या करना है? हमें ध्यान रखना है भाई अपनी जो डिजिटल हेल्थ के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है. एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी मस्ट वर्क एंड लीड टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड पर्सन सेंट्रिक केयर. डिजिटल जो हेल्थ स्ट्रैटेजी है इट शुड एम्फेसाइज ऑन द एथिकल एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. फर्दर अपने को नेक्स्ट और क्या चाहिए? आयुष्मान भारत एंड अदर सच टूल्स. ठीक है, लाइक ICT बेस्ड जो जितने भी टूल्स हैं उन्हें अपने को करना है फाइन ट्यून एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरवेंशन.